रनाला खुर्द SHO थाना रावी की बड़ी कार्रवाई, 4 खतरनाक डाकू गिरफ्तार। तफसीलात डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद इस रिपोर्ट में। थाना रावी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 डाकू गिरफ्तार। SHO थाना रावी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासिन ने कामयाब कार्रवाई के बाद 4 डाकू गिरफ्तार करते हुए 100% बरामदी को यकीनी बनाया। बताया जाता है कि डाकू पंजाब के दीगर अजला में मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस हैं। मजीद तफ्तीश जारी। कैमरामैन टीम के साथ असलम सजाद और न्यूज़ रनाला खुर्द। चिश्तियाँ से खबर शामिल करते हैं। चिश्तियाँ के मेले में करंट लगने से एक शख्स जाँ भाग। चिश्तियाँ लकी ईरानी सर्कस इंतजामिया की नाअहली, 22 अफराद की पुश्तपनाही के बाद सर्कस में लगे पोल से करंट लगने पर 35 साला मोहम्मद अहमद जाँ भाग कर चिश्तियाँ करंट लगने के बाद रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। चिश्तियाँ मोहम्मद अहमद जाँबर ना होने पर जिंदगी से हाथ धो बैठा। जाँ भाग होने वाला भट्टा कॉलोनी का रिहायशी था। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद मरसुज़ई के मुताबिक मोहम्मद ज़ई कार सेंटर 4 सद्दा रोड के ओनर मोहम्मद नुमान मोहम्मद ज़ई वल्द मोहम्मद अयूब मोहम्मद ज़ई और मुमताज़ खान वल्द बख्तर रहमान की दरीना दुश्मनी जरगा मुशरान हाजी वलायत शाह, मलिक मुराद, मलिक असगर, सदर नवीद दरनी, मलिक खान अली, हाजी यूसुफ खान, समी अफरीदी और हजरत बाजोड़ी की कोशिशों ख़त्म। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी, सियासी और मजहबी रहनुमा के साथ ताजों और आम अवाम ने शिरकत की। मजीद देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله د جرګي د مشرانو په برکت باندې خبره سر ته ورسوله. دا داسې او مجلس الله جل جلاله په دې انتهایی خوشحالي کې شیطان په ډېر زیات خفه کیږي. شیطان وی دا خبره مزید زیات شي زما رزق نشي کمولی. ما د چې الله کم لیکلی او تا د چې کم لیکلی هغه هم نه کمیږي. نو دې باندې جنگ نه بلکې د قرنګ صلح ته کېناستل. الله د دې دا صلح پایداره کی. دغه مرګري یو طرف ته ممتاز رور دی او بل طرف ته نعمان د دې چې مرګري دي دغه جرګې والا مشران دی مخې ته کې دی په منځ کې دا تسلي کو. ان شاء الله الله جل جلاله د نور د دې په منځ کې دغه رورولي قائم او دائم وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. والله بالله تله مونږ یو بل معاف څه چې شو هغه معاف کړل. هغه آینده به د یو بل خلاف نه په خپله نه د چا په واسطه هیڅ قسمه بد نه کوو. مونږ ورورولي کوو. خواږه خلک یې بس خدای نظر شو بس واړه خواږه دي چې واړه کشران دي واړه عزت کوي. والله چې سونو ګرځي د روګرځي لاړو راغو پکې دا څه خبره پکې نظر راغلی. موږ څه پکې ډېر ښایسته ملګري یو دی شو کاغه طرف نو کدي طرف نو د الله په فضل سره داسې خبره پکې راغلی. ډېر پر ولې ډېر په اسانتیا باندې زموږ شکر الحمدلله. خان علي بھائی اصغر جان بھائی داسې سمی بھائی دا ټول موږ سره ډېر دغه کوي نه دغه طرف نه خان علي او حضرت الله او یوسف بھائی موږ سره ډېر داسو کو چې موږ سره جرګو خبرونه کوي او الله ډېر په خیر خیر ته پرو دغه باندې ختمه کوي ان شاء الله. الرحمن الرحیم. ورور زه خو دې جرګې دغه ته ډېر په دروند نظر باندې ګورم ځکه چې ډېرې هلې ځلې وکړې ډېرې منډې ترړې والې شپې ورځې ورکړونه کې په دې جرګه کې هغه کسانو چې ډېر مخلص کسانو ورکړي. ټولې جرګې زه ډېر شکریا ادا کوم. مونږ ډېرې هلې ځلې وکړي او دا چې ګورې دا درانه مشران او مونږ سره زما الله ګواه دی چې شپه ورځ یو کړې وه او د دواړو فریقینو ته مونږ ناست یو. خو الله رحم وکړو انشاءالله زمونږ خبره کې هغې خبره مو نه که بس الله ته چې څه منظوره وه هغې
ومنله. سکړې دا کم ملګرو پکې ستړي کړي دي نو دا اجر د دې دا په الله نو الله دې ته ډېر زیات اجرونه ورکړي. موږ په داسې خلکو فخر کوو دا زموږ د کام ستنې دي زموږ د کام د راغونډولو دپاره چې کومې هلې ځلې کوي کوم کوششونه کوم ملګرو په دې جرګه کې چې دا کم کردار ادا کو دا ډېر د ستاینې وړ. دا رب العزت ډېر لوی احسان وکړو چې دا نن څومره دا الګ ول دلته ویني دا خلک راغونډ دي دا هم د دغه منډو ترړو د الو زلو وجه ده چې دا خلک نن په خوشحالۍ راغونډ شوي دي. بل زمون کلچر داسې دی چې خامخا د جرګې سیستم دی هغه جرګه به ځي که یو سړي سره جایز وي او که ناجایز وي خو دا جرګه رب العزت داسې پیدا کړې ده زمونږ د پښتنو دپاره چې د ظالم دپاره هم ده او د مظلوم دپاره هم ده. د ظالم دپاره هم د حیا صادر دی او د مظلوم دپاره هم د حیا صادر دی. نو موږ پښتانه رب العزت په دې څیز باندې بچ کړي چې دا کلچر زمونږ د جرګې دی. دواړو فریقو دی خدای ډېر عزت وکړي د دې مسله روانه وه د ډېر وخت نه د مشرانو دې هم خدای عزت وکړي. موږ پکې منډه تړله وواله په فضل الله دا کار راغونډ شو او دا دواړو فریقو زموږ خبرې ته ونارک او دا روغ هم وله وکړو. قلم ښه شی دی علم ښه شی دی او صبر ښه شی دی ټوپک ښه شی نه دی. ورغو او ممتاز خان ته مشرور موږ ته بنا کینی دا مسله خامخا ختمه پوه شوې بیا مې ځان سره مشران نورم کنده خان علي مې ځان سره کو او زیات خپل مشرور نظر کو ملک مراد هم ځان سره واغشتو او بس ال ظالم پکې شروع کیه او دا شیم دی حتی تر سعودي بنیاد ته د خیره ملک صاحب دا راته وایي چې ټوپک خي که قلم خي او خلکو له بس میسج ورکړي امن اواز یاره ټوپک کې کوم خیر نشته دی او کلم کلمیا کلم کې ډېر غټ خیر دی قلم کې او ټوپک کې خیر نشته دی. ملک صاحب ډېر ښایسته میسج ورکو چې ټوپک کې خیر نشته بے خیری ده او ټوپک نه څه جوړیږي نه اندېره ده قلم مینه ده وفا ده امن دی او کامیابی ده. حاصلپور سے ہماری نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصلپور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آئی خواتین کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. شدید گرمی سے بچاؤ اور رقم نکلوانے آئی خواتین کے لیے سایہ اور پینے کے صاف پانی کے ساتھ پنکھوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے. مستحق خواتین میں پوری رقم کی تقسیم کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے. ناجائز کٹوتی کرنے والوں پر کڑی نگرانی اور سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. میرے خلاف فرضی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. بہترین انتظامات کے لیے عارضی طور پر خیرپور ٹامیاں والی تعینات کیا گیا. تفصیل کے مطابق ان خیالات کا اظہار ملک سجاد اجمل اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خیرپور ٹامیاں والے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز مختلف اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں, سب فرضی کہانیاں ہیں. سابق تعیناتی میں بھی خواتین کی رقم میں کسی کو ناجائز کٹوتی نہیں کرنے دی. اب بھی حاصلپور سینٹرز پر پوری رقم کی تقسیم کے حوالے سے کڑی نظر رکھی گئی. مختلف شکایات کی صورت میں ناجائز کٹوتی کرنے والے ریٹیلرز کی ڈیوائسز کو بند کر دیا گیا ہے. رقم کے حصول کے لیے آنے والی خواتین کے لیے مناسب اور تمام تر سہولیات کو یقینی بنایا گیا ہے. خبر شامل کریں گے لیا سے. بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او لیا صدر الرحمان کی زیر صدارت سرکل چوبارہ کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ منعقد. میٹنگ کے دوران ڈی ایس پی سرکل چوبارہ غضنفر عباس, ایس ایچ او تھانہ چوک اعظم, ایس ایچ او تھانہ چوبارہ اور تھانہ جات کے تفتیشی افسران نے شرکت کی. ڈی پی او لیا نے مقدمات کی تفتیش اور کرائم کی شرح کا جائزہ لیا. ڈی پی او لیا نے پولیس افسران کو ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات عمل میں لائے جائیں. عوام الناس کی جان اور مال, عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے. پولیس افسران خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں اور عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بطور ٹیم ورک کام کریں کیونکہ ٹیم ورک کام کے ہمیشہ مثبت نتائج ملتے ہیں. نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کا رات کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں صفائی, خوبصورتی, ویسٹ مینجمنٹ سسٹم اور طبی سروسز کی بہتری کے ضمن میں خصوصی وزٹ. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اقبال مقول, ایم ایس ہیلتھ ڈاکٹر ریاض مستوئی شانہ بشانہ تھے. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ اسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی اور صفائی, تعزین و رہائش اور ویسٹ مینجمنٹ سسٹم سمیت تمام مسائل کو حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. اسپتالوں کی خوبصورتی اور گراسی ایریاز کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے فی الفور اقدامات کیے جائیں اور غیر قانونی تجاوزات کا بھی فوری خاتمہ کیا جائے. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے ہسپتالوں کی بلڈنگز اور دیواروں پر پرنٹ کرنے, سبزہ زاروں اور ہارٹی کلچر کی بہتری اور غیر ضروری پوسٹر اور پینافلیکسز کو ہٹانے کی ہدایات کی. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے مزید کہا کہ ہر ڈیوٹی کے دوران تمام طبی عملہ کا سروس بیج لگا ہونا چاہیے. نیز ہسپتالوں کے بیڈ شیٹس کی روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی سمیت بجلی اور پلمبنگ کی مینٹیننس لازمی کی جائے.
उन्होंने अस्पतालों में मशीनरी और इक्विपमेंट को ऑपरेशनल हालत में रखने की भी हदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर ने MS साहिबान को अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाने और मरीजों को इनके तीमारदारों के साथ हुस्न अखलाक और एहसन अंदाज में पेश आने की भी हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि अस्पताल में इलाज मुआवजा और मरीजों की निगहदाश्त पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और डॉक्टर्स और तिबी अमला इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। थाना दायर दीनपना की हदूद बस्ती संजरवाला पर ज़रई पानी के तनाज़ा पर फायरिंग कोटदू पोड़ा बरादरी की तरफ से की गई हवाई फायरिंग की फुटेज ऑन न्यूज़ को मसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर आए शरपसंद सरेआम हवाई फायरिंग कर रहे हैं। DPO मुजफ्फरगढ़ फौरी तौर पर नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक थाने स्टील टाउन के गेट पर पीपल्स पार्टी वालों का SHO स्टील टाउन और DSP बिन कासिम को हटाने के लिए एहतजाज किया गया। मजीद जानिए इस वीडियो में। वो ऐसे ही नशे में पुलिस कर दी, 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 ऐसा टकाओ, ऐसा टकाओ, DSP को, DSP को। अभी SHO साहब को इधर बुला लो, आप देखोगे वो SHO लगता है। अभी बुला लो, पता चल जाएगा कि SHO है या वो गवर्नर है। आप अभी बुला लो, पता चल जाएगा। पता नहीं कहाँ से ले आए हो आप लोग। हार भी आप लोग पहनाते हो। उसको हम लोग तो नहीं लेकर आए। हार भी आप लोग पहनाते हो। क्या कहना चाहेंगे? हार भी आप लोग पहनाते हो। बिल्कुल यही कहना चाहेंगे। ये माजरा जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी लोग सरापा एहतजाज हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आए दिन गुलशन नदीद का हर शहरी अपनी जान से भी महरूम हो जाता है कभी कभार, और मालो चीज़ों से तो डेली की बेसिस पे महरूम हो रहा है। किसी का फ़ोन छिन जाता है, किसी की बाइक छिन जाती है, किसी की गाड़ी छिन जाती है। उनका इनको परवाह नहीं है। आप रिपोर्ट भी करा दो तो ये आपको कॉल बैक नहीं करेंगे कि क्या रिपोर्ट हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उल्टा आपको खुद आना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, फिर ये बताएंगे अभी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और जब आपके पास FIR भी नहीं काट रहे, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से इसीलिए नहीं काट रहे ताकि ये दिखाना नहीं चाह रहे कि हमारे पास क्राइम का रेशो है, खुद को साफ दिखाना चाह रहे हैं ऊपर। तो लिहाजा हमारे जितने कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं और जितनी आवाम गुलशन नदीद की मौजूद है, हम उनके साथ हैं, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि जब तक इस SHO को मुअत्तल नहीं किया जाएगा, हम यहाँ पुलिस कर दी, एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। पुलिस कर दी, ऐसे चकाओ, ऐसे चकाओ, ऐसे चकाओ, ऐसे चकाओ, DSP को, DSP को। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल में तालीम देने वाला उस्ताद ही दुश्मन बन गया। एक शरीफ और भोली भाली लड़की को तालीम के नाम पर जालसाजी के साथ जाली निकाह नामा तैयार करवाकर लड़की की फैमिली को ब्लैकमेल करने की कोशिश। मुतासरा फैमिली ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जावेद इकबाल नामी शख्स जो मुख्तलिफ अकेडमियों में बतौर टीचर काम करता है और भोली भाली लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। मुतासरा फैमिली ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मजीद जानते हैं हाफिज अब्बास हैदर से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक मुतासरा फैमिली के घर, जो जिनकी बच्ची के साथ एक जालसाजी का मामला हुआ है। और जालसाजी करने वाला जो शख्स है वो जावेद इकबाल नामी शख्स है, जो मुख्तलिफ नारोवाल की मुख्तलिफ अकेडमियों में टीचिंग करता रहता है, लेकिन टीचर के रूप में वो मासूम और भोली भाली लड़कियों के साथ जालसाजी करता है और बाद में ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसे की डिमांड करता है। जो बच्चियाँ पैसे दे देती हैं तो वो उनको तो छोड़ देता है, लेकिन जो बच्चियाँ स्टैंड लेती हैं उनके खिलाफ वो फिर कोई जालसाजी बना के नकाहनामे और उनके ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। आइए हमारे मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, आइए हम उनके सिस्टर से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या बताना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ बने। अच्छा, तो क्या मामला हुआ है आपकी सिस्टर के साथ? आप ज़रा थोड़ा सा तफसीलन बताइएगा, वो क्या शख्स करता है और किस तरह वो जालसाजी की है और करता है, ये बताइएगा। सर ये मोहम्मद जावेद इकबाल नामी बंदा है, सपना बदले वाला। ये मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में अकेडमीज़ में काम करता है एज अ टीचर, और कॉलेजेस में भी एज अ प्रोफेसर काम करता है, और उसके अलावा होम ट्यूशन भी पढ़ाता है, और उसने एक बड़ा मजहबी रूप ये धारे हुए है।
तो इसने एक हमारी बच्ची का एक जाली निकाहनामा, जाली और फर्जी निकाहनामा ये सर्कुलेट करता है ब्लैकमेल करते हुए। क्या नाम है उसका जो जिसने जालसाजी का निकाहनामा बनाया? मोहम्मद जावेद इकबाल। जब वो हम उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं नादरा से, तो सारे जो नाम थे गवाहान के, निकाह खां का और रजिस्ट्रार का, सबके नाम फर्जी थे और इवन के जो उनके आईडी कार्ड्स नंबर थे वो भी फर्जी थे। नादरा से उनकी किसी किस्म का नादरा में कोई डाटा उनका मौजूद नहीं था उन बंदों का जिनके उन्होंने नाम लिखे थे बतौर गवाहान, निकाह खान या फिर रजिस्ट्रार। इसका आपका कहने का मतलब है कि ये जो निकाहनामे में जो गवाहान है और रजिस्ट्रार है और जो सेक्रेटरी, इस तमाम इसके में फेक हैं? सब फेक है सर। इसको फिर वो यूनियन कौंसिल चंदर के राजपूता में ये निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ। जब हमने यूनियन कौंसिल के जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद तारिक सिद्दीकी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल ये सारे जाली और फर्जी हैं, तो बस मैंने रजिस्टर्ड कर दिया है। उसने इसकी कोई वजह नहीं बताई कि उसने क्यों रजिस्टर्ड किया है। अच्छा, जो आपकी सिस्टर हैं वो पढ़ती थी, ठीक है, तो ये जो टीचर जवेद इकबाल है जो अपने आप को टीचर भी कहता है, तो इसने कोई पहले भी इस तरह का कोई वाक़या किया है आपकी सिस्टर के अलावा? सर इसने डबली वाला विजडम स्कूल में 2010 में इसने ये वहाँ पे टीचर था और वहाँ पे 9th क्लास की बच्ची के साथ भी इसने सेम यही मामला किया निकाहनामे वाला। अच्छा, तो अब आपका क्या मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब और DC नारोवाल से? आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं इस जवेद इकबाल जिसने जाली साथ जो निकाहनामा किया बनाया, इसके खिलाफ क्या मुतालबा चाहती हैं आप? सर ये मामला DC नारोवाल और DPO नारोवाल दोनों के नोटिस में है और हमारा वज़ीर आला पंजाब से और DCO नारोवाल से और DPO नारोवाल से ये मुतालबा है, हम अपील करते हैं कि वो इस बंदे को कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए और इस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो उस्ताद होता है वो रूहानी बाप होता है। तो पता नहीं कितनी बच्चों की इज़्ज़तों के साथ ये खेल रहा है और कितने वालिदैन की इज़्ज़तों के साथ खेल रहा है, कितनी बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहा है और पता नहीं ऐसे और कितने लोग हैं जो इस गैंग में शामिल हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पे वो अच्छे तरीके से कानूनी कार्रवाई करें और इसमें जितने लोग शामिल हैं, जितने लोगों की ये टीम है, सबको बेनकाब किया जाए और सबके ख़िलाफ़ सख्ती से कार्रवाई की जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ मुतासा फैमिली की एक लेडीज़ थी, उनका कहना था कि ये जो जवेद नामी शख्स है ये एक तो टीचर के रूप में, इंसानी रूप में भी दरिंदगी का जो इसने खेल रचाया हुआ है, लोगों की मासूम बच्चियों के साथ ये घिनौना काम करता है। लोगों की जो फैमिली की बच्ची हैं घर से तालीम हासिल करने के आती हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए तालीम हासिल करती हैं। ये दरिंदा जानवर जो अपना जवेद नामी है, इसने मुख्तलिफ़ अकेडमियों में काफ़ी लड़कियों के साथ इस तरह के खिलौने काम किए हैं और जालसाजी करता रहा है। इनका मुतासर फैमिली का कहना था कि हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब और DC नारोवाल से और DPO नारोवाल से मुतालबा करते हैं कि इस जवेद नामी शख्स के साथ ख़िलाफ़ कानूनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा से लोगों की बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज रहें और ताकि बच्चियाँ अपनी तालीम हासिल करके अपने माँ बाप और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज़ अब्बास हैदर, ऑन न्यूज़ नारोवाल। खबर शामिल करते हैं रहीम मियां खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम मियां खान निजी फलाही तंजीम के ज़रिए तमाम ज़हनी हम आहंगी बराए मौसमियाती तब्दीली के हवाला से प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और फार्म्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौसमी तब्दीलियों और कुदरती आफात से फसल को बचाने के लिए लासोना तंजीम की जानिब से ज़हनी हम आहंगी बराए मौसमियाती तब्दीली के हवाला से प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब, जिसमें ज़िला राजनपुर और रहीम मियां खान के फार्मर्स ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में
ने महकमा हेल्थ, महकमा ज़राअत, महकमा तालीम, PMA, लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर इदारों की मदद से फसल समेत इंसानी सेहत और जानवरों और दीगर नुकसानात की रोकथाम के लिए प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाने के अज़म का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब में शरीक फार्मर्स ने लासोना तंजीम की प्रोजेक्ट और इनकी किसानों के लिए काविशों को खूब सराहा। माहिरीन कहते हैं कि मौसमी तब्दीलियों के असरात पर काबू पाना और तमाम लोगों तक मौसमी तब्दीलियों के असरात पर काबू पाना वक्त की अशद ज़रूरत है, जिससे वतन अजीज़ के शहरियों का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा। वांडू लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रक उलटने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक वांडू से लाहौर जाते हुए मोटरवे पर भैंसों से भरा ट्रक उलट गया। रेस्क्यू ज़राए की तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चले कि कुर्बानी के जानवरों और भैंसों से भरा ट्रक नामालूम वजह से उलट गया, जिससे ट्रक में मौजूद 2 अफराद, जिनका नाम साजिद और दूसरे का नाम नामालूम, मियाँ चन्नू के रहायशी हैं। वांडू ट्रक उलटने से 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर मरीद के शिफ्ट कर दिया। गोजरा तहसील भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली इमदाद के लिए तहसील गोजरा की खवातीन को सहूलियात फराहम करने के लिए 2 एहसास कफालत सेंटर बनाए गए हैं। एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम और दूसरा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की ज़ैनब हॉल में, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु की ज़ेर निगरानी इन दोनों सेंटर्स पर इंतहाई मुस्तैद अमला तैनात किया गया है, जिसकी सिक्योरिटी मॉनिटरिंग SHO थाना सिटी इमदाद असलम कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि महकमा तालीम से मुंसलिक अफराद भी अपनी ड्यूटी सेंटर्स पर सर अंजाम दे रहे हैं। ज़ैनब हॉल में मौजूद वुमेन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैडम जवेरिया बाजवा इंचार्ज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कफालत सेंटर इंतहाई मुस्तैदी और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ अपने फ़राइज़ मुनसबी अंजाम दे रही हैं, जबकि सेंटर्स पर तैनात अमला, जिसमें लेडी कांस्टेबल्स और महकमा नशोनुमा का अमला भी अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वुमेन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैडम जवेरिया बाजवा का कहना था कि सेंटर में किसी भी किस्म की कोई भी सिफारिश और करप्शन को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता। हर खातून को बाइज़्ज़त तरीक़ाकार से इसके पैसे दिए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु भी वक्फा से दोनों सेंटर्स की खुद निगरानी कर रहे हैं। वाज़िया रहे DPO टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन ने भी तमाम सेंटर्स का दौरा किया और कफालत सेंटर्स के इंतजामात पर मुकम्मल का इत्मीनान का इजहार किया और अमला की कारकर्दगी पर शाबाश भी दी। ननकाना साहिब से हसन राना की रिपोर्ट के मुताबिक सिख बरादरी के मजहबी त्यौहार बरसी महाराजा रंजीत सिंह की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम। ननकाना पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए अमन कामयाब बनाया। बैरून ममालिक से आने वाले भारतीय सिख यात्रियों की ननकाना से रवानगी। सिख यात्रियों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुलिस के ताउन को खूब सराहा। तर्जमान पुलिस मेहमान यात्रियों को सिक्योरिटी के सख्त हसार में रवाना किया गया। पाकिस्तानियों से मिलने वाला प्यार और इज्जत काबिल तहसीन है। सिख यात्री फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात की फ्राहमी पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सिख यात्री बरसी की तकरीबात को पुरअमन बनाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश। DPO साइद अजीज अकलीतों के इबादती मुकदमात और मजहबी रसूमात के मौके पर सिक्योरिटी फ्राहम करना हमारा वलीन फर्ज है। वज़ीराबाद चंद रोज़ कबल मौजा चबा चीमा का रहायशी 6 साला जावियार चीमा, जिसे 50 लाख रुपए तावान की खातिर मुलजमान ने अगवा किया और वालिदैन की तरफ से 50 लाख रुपए तावान की अदायगी के बाद बच्चे को रिहा कर दिया गया। SHO अहमद नगर सलेमान सलीम, सिक्योरिटी ऑफिसर मुबशर क्लीर ने अपनी टीम के हमरा महारत दिखाते फौरी कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान, जिनका ताल्लुक हराकोट निकी चट्टा से है, को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने बच्चे को अगवा के बाद फिश फार्म पर रखा था। गिरफ्तारी के बाद मुलजमान से तावान की रकम 50 लाख रुपए भी बरामद कर ली गई। अंधे केस को साइंटिफिक तरीके से फौरी हल करवाने और अच्छी कारकर्दगी पर मोहम्मद अयाज सलीम CPO गुजरांवाला की तरफ से पुलिस टीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर 3 लाख रुपए इनाम से नवाजा गया। पुलिस कारकर्दगी पर SHO अहमद नगर सलेमान सलीम, सिक्योरिटी ऑफिसर मुबशर क्लीर टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए सर्टिफिकेट से नवाजा गया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जट देओ ने कहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम सियासतदान पाकिस्तान पर बोझ हैं। PTM और पीपल्स पार्टी के कायदीन दिखावे के लिए लड़ते हैं, मगर अरबों रुपए आपस में तकसीम करने के वक्त फिर से मुतहिद हो जाते हैं। हुक्मरान जमातों की रवायती सियासत दम तोड़ चुकी है। अब अवाम इनके झांसे में नहीं आएगी। आने वाला दौर PTI का है, जिसका वोटर आज भी पार्टी के साथ मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है।
عمران خان کو مائنس کرنے کی سوچ رکھنے والے منہ کی کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشکول اٹھا کر پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والے حکمران پاکستان کے خیر خواہ نہیں، یہ قومی خزانے پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، عوام انہیں مسرت کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کشتی حادثے میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کی لاشیں واپس لانے کے لیے یونان جانے کی بجائے بھیک مانگنے کے لیے فرانس پہنچ گئے۔ یہ کبھی کشکول مشن پر چین کا رخ کرتے ہیں تو کبھی IMF کی سربراہی کی منتیں کرتے ہیں۔ ملک پر قرضوں کے بوجھ کی ذمہ دار نواز لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، جس نے پاکستان کو معاشی تباہی سے دوچار کیا اور عوام کو غربت اور مہنگائی کے تحفے دیے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے خلاف جاری پروپیگنڈا انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی مذموم کوشش ہے، جسے پاکستان کے آئین پسند عوام مسترد کرتے ہیں۔ جو لوگ فوجی عدالتوں میں دہشت گردوں کے کیسز چلائے جانے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ملٹری کورٹس کو متنازع بنانے کی سازش رچی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن شرپسندوں نے 9 مئی کے روز فوجی تنصیبات پر حملہ کیا وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔ ملٹری کی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو ملٹری ایکٹ کے تحت ہی سزائیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سول عدالتوں پر پہلے ہی کیسز کے بے پناہ بوجھ ہیں، لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں جنہیں بروقت نمٹایا جانا ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر 9 مئی کے شرپسندوں کو بھی انہیں عدالتوں میں ٹرائل کے لیے پیش کیا گیا تو دیگر زیر التوا کیسز مزید متاثر ہوں گے، انہیں اور ان شرپسندوں کو سزائیں ملنے کا پروسیس بھی تاخیر کا شکار ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کیسز کو ہنگامی بنیادوں پر نمٹایا جائے، جس کی موجودہ سول عدالتی سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان ہماری آن بان اور شان ہے، جسے متنازع بنانے یا بدنام کرنے کی کوئی کوشش غیور عوام کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی بہادر اور جری فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے ضلع سینئر نائب صدر ملک افتخار کھارا ڈوگر نے کہا ہے کہ PTM کی اتحادی حکومت جلد رخصت ہونے والی ہے۔ قوم ظالم حکمرانوں سے نجات کی خوشی میں سجدہ شکر ادا کرے گی۔ موجودہ حکمرانوں نے ملک کو تباہی سے دوچار کیا، معیشت ڈبو دی اور عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل میں دھکیلا۔ عمران خان کے جیالے حالات سے گھبرانے والے نہیں، ہم PTM اور پیپلز پارٹی کی کرپٹ سوچ کو دفن کر کے دم لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں نے انتخابی دھاندلی کا جو پلان بنایا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ عوام اپنے ووٹ پر پہرا دے گی، جسے عوام چاہے گی وہی آگے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان قوم کے حقیقی مسیحا اور نجات دہندہ ہیں، جنہیں مائنس کرنے کا مذموم منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ عمران خان کے بغیر ملک کی سیاست کا وجود مکمل نہیں ہوگا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن کے دور سے باہر کرنے کی کوشش جمہوری اقتدار کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور اپنی مزید انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ فقط عمران خان یقینی بنا سکتے ہیں۔ PTM اور پیپلز پارٹی کی قیادت ملک اور قوم کا مقدس سنوارنے کی صلاحیت نہیں، یہ اپنی جیبیں بھرنے کے سوا کچھ کرنا نہیں جانتے۔ پورا سے آپ کو بتاتے چلے سابق صوبائی معاون خصوصی امیدوار NA 116 خرم منور منچ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میئر کراچی کے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کرے۔ جماعت اسلامی اور PTI کی قیادت کے مطالبات حقائق پر مبنی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے میئر کراچی الیکشن میں کھلی دھاندلی کی اور دھونس کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذموم منصوبے کے تحت PTI کے امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا، جس کا فوری نوٹس لیا جانا چاہیے۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی اور PTI کو میئر کراچی بنانے کا مینڈیٹ دیا، جسے دھاندلی اور دھون سے تبدیل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بتائے کہ آپ کا آئین کی پاسداری کا حلف کہاں گیا؟ جب آپ عوام کو انصاف نہیں دے سکتے تو ان کے ٹیکسز سے مارات اور تنخواہیں کیوں لیتے ہیں؟ کراچی میں کیسا الیکشن تھا کہ 9 لاکھ ووٹ لینے والی جماعتوں کا میئر منتخب نہیں ہوا اور 3.25 لاکھ ووٹ لینے والوں نے اپنا میئر مسلط کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میئر کراچی کے الیکشن میں ہونے والی واضح دھاندلی نے الیکشن کمیشن کی قابلیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اگر ری پولنگ نہ کرائی گئی تو آئندہ عام انتخابات کے نتائج بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کراچی میئر سلیکشن پروسیس کو کالعدم قرار دے کر غائب شدہ بلدیاتی نمائندوں کو حاضر کر کے دوبارہ شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा और साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत रोगर ने कहा है कि पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर हैं जो मौजूदा माशी सूरत हाल में मुल्क को बहरान से निकालने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इनके वादों पर यकीन रखते हैं। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आकर मुल्की मुश्किलात को बहुत जल्द दूर कर देंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत का हर मंसूबा इनके हुब्बुल वतनी और अवाम दोस्ती की दास्तान बयान कर रहा है और आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून माजी की खिदमात, जिसमें मोटरवेज लोड शेडिंग का खात्मा, सी पैक दहशतगर्दी का खात्मा और मेट्रो बस जैसे बड़े मंसूबे के पेश नज़र ज़रूर 2/3 अक्सरियत से कामयाबी से हमकिनार होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाली PTI जिसके सरबराह इमरान खान है, इनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए, मगर इनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, महाराजा रणजीत सिंह की 184वीं बरसी तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से आए हुए 400 से ज़ायद सिख यात्रियों ने शेखपुरा में गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद का दौरा किया। गुरुद्वारा पहुंचने पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा लारेब असलम और ज़िले इंतजामिया के अफसरान ने सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा में अपनी मजहबी रसूमात अदा की, जबकि ज़िले इंतजामिया की जानिब से सिख यात्रियों की सिक्योरिटी, इनके खाने पीने समेत मेडिकल कैंप के भी इंतजाम किए गए थे। सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद वापस गुरुद्वारा जनमाज स्थान ननकाना चले गए। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान में सहूलियात की फराहमी और मजहबी मकामात की शानदार देखभाल पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। जुडिशल मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद सुहेल रियाज की निगरानी में एंटी करप्शन टीम का रेड, नायब तहसीलदार शेखपुरा का रेडर राना मोहम्मद असगर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, 20,000 रुपए बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजिम मौके से गिरफ्तार। खोखरा जनियान वाला के रिहाशी साबिर अली ने दफ्तर एंटी करप्शन शेखपुरा में दरख्वास्त दी कि इसका मोहल्ला सिद्दीका कॉलोनी में 5 मरला का प्लाट है, जिसकी निशानदही के लिए तहसीलदार शेखपुरा को दरख्वास्त दी। प्लाट की निशानदही करवाने के लिए तहसीलदार आरिफ अंजुम ने अपने फ्रंट मैन इकबाल बलोच के जरिए कबल इससे 25,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए और फिर तहसीलदार के रेडर राना मोहम्मद असगर ने इससे मजीद 20,000 रुपए रिश्वत का तकाजा किया, जिस पर सर्कल ऑफिसर खावर अब्बास इंस्पेक्टर ने रेड की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहतरमा मिसेस शाहिदा सईद को दरख्वास्त दी। सेशन जज ने रेड की निगरानी के लिए सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद सुहेल रियाज को फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। मुलजिम ने रिश्वत लेने के लिए मुद्दई को अपने दफ्तर अदालत नायब तहसीलदार बुलाया और मुद्दई से 20,000 रुपए रिश्वत ली। मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद सुहेल रियाज और एंटी करप्शन टीम वहां पर पहले से मौजूद थे। मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसकी तलाशी लेने पर फाइलों के नीचे छुपाए हुए निशान ज़दा 20,000 रुपए बरामद कर लिए गए। मुलजिम ने इस्तफसार पर बताया कि वो 3 नायब तहसीलदारान तलत अजीज, मलिक जैगम अब्बास और शफाकत अली समरा के रेडर के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहा है। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना एंटी करप्शन शेखपुरा मुंतकिल कर दिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। याद रहे कि एंटी करप्शन की टीम जुडिशल मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद सुहेल की निगरानी में कबल भी मुतअद्दिद रेड्स करके मुख्तलिफ महकमा जात की कई सरकारी एहलकारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर चुकी है। शेखपुरा से आपको बताते चले, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। पार्टी रहनुमा और कारकुनान की भरपूर शिरकत। पीपल्स पार्टी शेखपुरा के ज़ेर एहतमाम साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल नायब सदर और नामजद उम्मीदवार PP 140 चौधरी मनीर कमर वागा, चौधरी खालिक अजीज मतविरक, राना मोहम्मद अकरम नाज, चौधरी लतीफ़ अहसन पुन्नो, मियाँ इमरान, मियाँ ताहिर रफ़ीक, मोहम्मद रियाज, शेख नज़ीर, शेख खवैस, सरदार शेख हसन समेत खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी मनीर कमर वागा ने दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानियों को हकीकी जमहूरियत दी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली और मजबूती की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके जमहूरियत को दुआम बख्शी। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कायद अवाम और शहीद जमहूरियत का फलसफा आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पार्टी कारकुनान इनके साथ खड़े हैं और हमेशा इनके शाना बशाना फ़रोग़ जमहूरियत की जदोजहद में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मुल्क में जमहूरियत की बहाली और फ़रोग़ की खातिर दी गई कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा किसानों, मजदूरों और माशरे के पिसे हुए तबकात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी।
रिपोर्ट यूनस अवान से। जापान के वफ्द की सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन सजाद अवान की दावत पर पाकिस्तानी अखाड़ों का दौरा। गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन सजाद अवान की दावत पर जापानी वफ्द के हमरा कर्नल रिटायर्ड आसिफ डार और दौरे शावर ने पाकिस्तानी पहलवानों के अखाड़ों का दौरा किया और लाहौर के नामवर पहलवान मलिक इमदाद पहलवान के अखाड़े को सराहते हुए शेर पाकिस्तान तैयब रजा अवान, पहलवान यासिर अब्बास अवान, पहलवान मौसब न्याजी, पहलवान बिलाल अवान, पहलवान इसरार अवान, पहलवान निशावर, पहलवान वासिफ, पहलवान शमरेज पहलवान और दीगर मारूफ पहलवानों से मुलाकात में जापानी वफ्द ने देसी कुश्ती की सरपरस्ती करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़दाम की मुलाकात। ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़दाम ने वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ने डॉक्टर मुक़दाम को पाकिस्तान में बतौर सफ़ीर तैनाती पर मुबारकबाद दी। दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ने पाक ईरान ताल्लुकात की मुस्बत पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और आला सतही तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। याद रहे कि पाकिस्तान में ईरान के नामज़द सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़ादम 8 जून 2023 को अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। वो सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की जगह आए हैं जो अपने मुल्क की दफ्तर खारजा में नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तेहरान गए हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़ादम की तकरीरी की हतमी मंजूरी दी। सफारती ज़राए ने ईरानी ज़राए इब्लाग के हवाला से मीडिया को बताया कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान रवानगी से कबल सफ़ीर पर जोर दिया कि वो इस्लामी इनकलाब के असूलों और इक़्तिदार को उजागर करे ताकि सियाहत, सेहत, इक़्तिसादियत, साइंस, टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की मुनफरिद सलाहियतों को मुतारफ़ कराया जा सके। खसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ने आज FM से मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल का जायजा लिया। FM काबिल के साथ करीबी ताउन पर मुबनी ताल्लुकात इस्तवार करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अदा किया। फ्लैगशिप पाक अफगान मंसूबों की जल्द तकमील पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जुमेरात को कहा कि अदलिया को पार्लियामेंट में मज़ीद मुदाखलत से रोकना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो पहले ही ऐवान के इख्तियारात में काफ़ी मुदाखलत कर चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास के दौरान किया। उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों आम शहरियों के ट्रायल का मुआयना सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। साबिक दौर हुकूमत में फौजी अदालतों से 24 से 25 अफराद को सजाएं सुनाई गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच अलग हो गया है लेकिन नताइज आज या कल सामने आएंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया है कि इनके मुल्क के पायलट अपने तर्क हम मंसूबों को तरबियत दे रहे हैं। तुर्क फिजाइया के कमांडर जनरल अटीला गलान की क़यादत में तुर्क वफ्द से मुलाकात के बाद एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी पायलट तुर्की के फ़िज़ाई अमले को मुख्तलिफ हथियारों की तरबियत देने में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं जिनमें ट्रेनर्स और जंगजू शामिल हैं। इतला दी दफ़ा तुर्की एयर चीफ मार्शल बाबर ने पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को जदीद बनाने और इत्तेहादी ममालिक से हौसलाबी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और तरबियत को बेहतर बनाने की मनसूबा को इश्तराक किया। रिपोर्ट के मुताबिक एयर चीफ ने इस बात पर रोशनी डाली कि दोनों ममालिक के दरमियान दरीना मजहबी और तारीखी ताल्लुकात में जो बेमिसाल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए जाहिर होते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।